مشکل بھی ہے. مشکل ان کے لیے جو اٹینٹو نہیں بیٹھتے اور بس اپنی دنیا میں ہوتے، اور آسان ان کے لیے جو اٹینٹو بیٹھتے ہیں. کیونکہ دیکھیں، اگر آپ لوگوں کو پتا ہو کہ ایک پینٹر کے لیے جو اسکیچنگ کرتے ہیں سب سے ضروری چیز جو ہوتی ہے نا، اس کی کریٹیوٹی ہوتی ہے، کریٹو مائنڈ. تو جنریٹو اے آئی میں بھی آپ جنریٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی کریٹیوٹی ہونی چاہیے. صحیح. تو چلے شروع کرتے ہیں یا نہیں؟ اچھا چلے بس شروع کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنریٹو اے آئی ہے کیا چیز؟ صحیح ہے. سب سے پہلے جنریشن کیا چیز ہوتی ہے؟ جنریشن ہوتی ہے کریٹ کرنا، کوئی چیز کریٹ کرنا، تو جنریشن ہوتی ہے. صحیح. آج کل اگر ہم دیکھ لیں تو آس پاس کی دنیا میں ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جو کریٹ کرتی ہے چیزیں ان چیزوں کو جو پہلے سے نہیں ہوتی. صحیح. ان میں اگر ہم سر پیرس بات کر لیں تو چیٹ جی پی ٹی ہو گیا، جس کے بغیر آج کل ہمارے کوئز نہیں ہو رہے، ہمارے اسائنمنٹس نہیں ہو رہے. تو جنریٹو اے آئی ہے یہ چیز. صحیح، آسان الفاظ میں. دوسری بات یہ کہ میں آج کا ٹاپک تھیوریٹیکل ہے تھوڑا سا، تو بور ہونے سے میں آپ لوگ کو بچاؤں گا بھی. لیکن اگر بور ہو رہے ہو تو مجھے بیچ میں آپ لوگ پھر کوشچن بھی کر سکتے ہیں. میں کچھ آپ لوگ کے لیے کوئی رکوں گا وغیرہ، بٹھانے کے لیے ایکٹیویٹیز وغیرہ کریں گے. لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کو بور ہونے سے بچا دوں. صحیح. اب دیکھیں، دو قسم کے ماڈلز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے وہ ماڈل جو آپ کے کوشچن کا آنسر دے دے. صحیح. لائک آپ پریڈکشن کر لیں ایک حساب سے اگر ہم بات کر لیں. دوسرا ہوتا ہے جو آپ کو پریڈکشن نہ کرے بلکہ آپ کو کوئی چیز جنریٹ کر کے دے دے. صحیح. اب پریڈکشن اور جنریٹ دو چیزیں الگ الگ ہیں. میں اگر ریئل لائف میں ایگزامپل آپ کو دے دوں تو آپ ٹیچر سے کوشچن کرتے ہیں کہ سر میں اس طرح کر رہا ہوں، میرے مارکس مطلب میں اسٹڈی اتنا کرتا ہوں، میں نے یہ ٹاپک پڑھے ہوئے، کیا میں پیپر پاس کر لوں گا یا نہیں؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے کہ ہاں یا نہیں. کیوں؟ کس بیس پہ؟ اس بیس پہ کہ آپ نے پچھلا اس کو آپ نے اس کو اپنا پچھلی سارا ہسٹری بتا دیا کہ میری ہسٹری یہ ہے، اس ہسٹری کے بیس پر میں پاس ہو جاؤں گا یا نہیں. یہ پریڈکشن ہے. یہ مشین لرننگ، ڈیپ لرننگ ماڈلز یہ کام کرتے ہیں. ایک ہوتے جنریٹو اے آئی. جنریٹو اے آئی کیا چیز ہے؟ وہ اے آئی کا کون سا برانچ ہے؟ اگر آپ ٹیچر کو بول لیں کہ سر واٹ از ڈیفیوژن، یا آپ بول دیں کہ واٹ از اے آئی، اور وہ آگے سے آپ کو ایک ڈیفینیشن بتا دے اور آپ کو سمجھا دے، تو یہ جنریٹو جنریشن ہے. تو ان دونوں میں یہ فرق ہے جنریٹو اے آئی میں اور نارمل جو ماڈلز ہوتے ہیں. صحیح. آج ہم بات کریں گے اسپارک اینڈ ایکو کہ اے آئی لرن کس طرح کرتا ہے اور اس سے ہم سیکھتے کس طرح ہے، مختلف ماڈلز کون سے. آگے اگر ہم جاتے ہیں بات کر لیں جنریٹو اے آئی مطلب کیا ہے. دو قسم کے ماڈل میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک ڈسکریمنیٹو ماڈل ہے، ایک جنریٹو ماڈل ہے. ڈسکریمنیٹو ماڈل اے آئی جو ٹریڈیشنل اے آئی ہے، آپ ان کو کوشچن کرتے ہو، آپ کو آگے سے پریڈکشن کر لیتے ہیں. ریئل لائف میں اس کے ایگزامپلس بہت سارے ہیں. اس کے آپ ہیلتھ کیئر میں ہیں، ان کے ایگزامپلز آپ کو بزنس میں مل جائیں گے، ایجوکیشن میں مل جائیں گے، انڈسٹریز میں، ہر چیز میں مل جائیں گے. کس طرح؟ آپ لوگ اپنی امیجنری دنیا میں چلے جائیں. صحیح. اب مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، ایک بچے کو آپ اٹھاتے ہیں، ابھی وہ چل نہیں سکتا، مطلب 1 1.5 سال کا یا 1 سال کا بچہ ہے. آپ ان کو ہاتھوں سے پکڑتے ہیں، ان کے پیر اٹھاتے ہیں، ان کو چلنا سکھاتے ہیں. صحیح. اب اس کو پتہ ہے کہ چلنا کیا ہوتا ہے، میں پیروں سے چل بھی سکتا ہوں یا نہیں، ان کو کچھ بھی نہیں پتا، لیکن ہم ان کو سکھاتے ہیں. پھر ہم آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ چھوڑ دیتے اور ان کے ساتھ مطلب چلتے تاکہ وہ جب وہ گرے تو ان کو پکڑے. وہ گرتا ہے، ہم اس کو اٹھاتے پھر دوبارہ ان کو روانہ کرتے. اس طرح کرتے 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 ایک وقت آتا ہے تو وہ چلنا سیکھ جاتا ہے. تو یہ اگر ہم سوچیں اپنے ذہن میں تو یہ کس طرح سیکھا ہے؟ وہ پریکٹس سے سیکھا ہے، وہ سیکھ کے سیکھا ہے. وہ اس کو ہم نے سکھایا ہے، اس نے چلنا سیکھا ہے
हिस्ट्री से, डेटा से। कौन सा डेटा? हम लोग उसको डेटा देते हैं कि चलना इस तरह होता है, पाँव इस तरह उठाना होता है। तो सेम एआई का काम करते हैं। एआई को हम डेटा देते हैं। किस तरह डेटा देते हैं? कि मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, उसकी बीपी इतनी है, उसकी ईसीजी रिपोर्ट ये है, उसकी फैट रेशो बॉडी में इतनी है, वेट उसका इतना है, एज उसकी इतनी है, जेंडर उसका ये है, मुझे बताया कि उसको हार्ट डिजीज है या नहीं है। सही। तो इस तरह हॉस्पिटल में हम चले गए और हमारे पास 5,000 पेशेंट का डेटा है। हर पेशेंट ने टेस्ट भी किया हुआ, उसकी उम्र भी है, डिफरेंट कैटेगरी उसमें आ जाएगी। हर तरह का डेटा उसमें होगा। फिर मेल का भी होगा, फीमेल का भी होगा, बच्चों का भी होगा, बड़ों का भी होगा, मोटे लोगों का भी होगा, पतलों का भी होगा, हर तरह का। और डेटा में ये भी होगा कि ये पेशेंट है या नहीं है। तो हमारा एआई मॉडल उसको सीख लेता है कि हाँ, इस तरह सिचुएशन आ जाए तो ये होगा, इस तरह आ जाए तो ये होगा। हमारा टारगेट वेरिएबल मतलब ये कि हर पेशेंट है या नहीं है, वो उससे अक्स कर सकता है। सही। अगर मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ, ये एक मैं आप लोग को दिखाता हूँ। चलिए जी, चलिए मैं इसको फिर सेटअप करके बता दूंगा आप लोग को, एक मिनट। अच्छा, तो मैं अगर आप लोग को बात बता दूं, तो मैं ये बता रहा था कि मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक टेबल हो गया, ये दूसरा टेबल हो गया, ये तीसरा हमारे पास टेबल हो गया, और ये हमारे पास चौथा टेबल हो गया। इन टेबल में हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, और इन टेबल से हम आगे जाके क्या प्रिडिक्शन करते हैं कि ये, मिसाल के तौर पर ये पहला वाला जो है ना, ये एज है, ये जेंडर है, ये ईसीजी है, और ये वेट है, इस तरह और भी बहुत सारे टेबल्स होंगे। तो इन टेबल का डेटा आगे जाके यहाँ पे उसकी प्रिडिक्शन होगी कि ये हार्ट डिजीज है या नहीं है, ये है या नहीं है। इस तरह कर करके, इस तरह आपको नीचे आके मतलब लाखों में करोड़ों में डेटा होगा। तो इससे हमें आगे पता चलता है कि है या नहीं है। तो ये उस हमारा एआई मॉडल इससे सीख जाता है। अब आगे क्या होता है, वो प्रेडिक्ट करते हैं, हम उसको नया डेटा देते हैं। उनको कहीं से भी वो डेटा नहीं मिला होता, हम उसको देते हैं कि मिसाल के तौर पर एज ये है और जेंडर ये है, सारा कुछ देते हैं, और एंटर कर लेते हैं कि आप बताओ कि उसको हार्ट डिजीज है या नहीं है। तो आगे से बता देता है कि हाँ, इसको है या नहीं है। तो ये होते हैं ट्रेडिशनल एआई, इस तरह सीखता है। क्लासिफिकेशन भी करते हैं, उसमें मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स होते हैं, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे, वो अलग टॉपिक है। इंशाल्लाह आगे हम 3 मंथ्स का वो करेंगे, बूट कैंप। तो उसमें डिटेल से हम बात करेंगे, हम उसको ट्रेडिशनल एआई भी टच करेंगे, जनरेटिव एआई की तरफ आएंगे। तो जनरेटिव एआई क्या करता है? जनरेटिव एआई ये सारा काम नहीं करता जो हमने अभी बता दिया है, ये सारा कुछ नहीं करता। उसको हम चीज बताते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, तो उसके पास ऑलरेडी डेटा पड़ा होता है, तो उसको सीख के नया डेटा हमें देता है, आगे से नया बिल्कुल। लाइक उसको अगर हम बोल दें कि व्हाट इज एआई, सही, मैं एआई बोल देता हूँ। अब वो व्हाट इज एआई क्या करते हैं, वो पीछे जाके उसके पास डेटा जो पड़ा होता है उसमें एआई ढूंढ लेता है। उस सारे डेटा में जब उसको एआई जब मिल जाता है, तो वहां से सीख जाता है, यहाँ आके खुद से एक आंसर जनरेट करता है, खुद ब खुद, कि एआई ये चीज है। तो जनरेटिव एआई में ये काम होता है। अब इन दोनों चीजों में जो इम्पोर्टेंट, ये दोनों मॉडल्स में इम्पोर्टेंट चीज जो होती है ना, वो फंक्शन होती है। फंक्शन क्या चीज है? मैथ्स में आप लोगों ने फंक्शंस पढ़े होंगे। मैं भी आप लोग को आसान अल्फाज में फंक्शन बताता हूँ कि फंक्शन क्या चीज है। फंक्शन, आप इनपुट दे दें उस फंक्शन को, फंक्शन उसके ऊपर काम कर लेता है और वो आपको आउटपुट दे देता है। ये फंक्शन है। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बता दूं, तो एफ अगर फंक्शन में बोल दूं एक्स स्क्वायर, मिसाल के तौर पर मैंने बोल दिया एक्स स्क्वायर, सही। अब एफ ऑफ एक्स, मिसाल के तौर पर के एफ में एक्स की वैल्यू, एक्स वैल्यू अब 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो अगर एफ की 1 वैल्यू होगी तो यहाँ पे 1 स्क्वायर पे जो आएगा, यहाँ के एफ की 2 वैल्यू होगी एक्स की, तो एफ ऑफ 2।
यहाँ पे 2 2 4 तो 4 आ जाएगा। तो फंक्शन क्या है? आपको आप इनपुट देते हैं, आपको आउटपुट दे देता है। ये फंक्शन है। तो क्या होता है यहाँ पे? फंक्शन फंक्शन होता है एक मैथमेटिकली इक्वेशन जिसको आप इनपुट दे देते हैं और वो आपको आउटपुट दे देता है। आसान, ये मैंने बहुत आसान अल्फाज में आपको बता दिया। आगे इंशाल्लाह हम उसको फिर डिटेल से पढ़ेंगे। तो फंक्शन दोनों चीज़ों में काम करता है, ट्रेडिशनल एआई में भी, जनरेटिव एआई में भी। अगर मैं आगे आपको बता दूं, अब ये देखिए मिसाल के तौर पर क्या है, एक एग्जांपल आप लिख लेते हैं कि मुझे ये जनरेट करके दे दे एक चीज़। ठीक। अब उसको किस तरह पता चल जाता है कि मैंने ये चीज़ देनी है आपको? उसको पता इस तरह चल जाता है कि उसको जब आप बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ लेके दे दे, मतलब ड्रा पिक्चर ऑफ जेब्रा, अगर मैं मिसाल के तौर पर बोल दूं, तो वो ड्रा का मतलब समझ जाता है एआई। फिर ए का मतलब पिक्चर का मतलब जेब्रा का मतलब, सारा मतलब जब उसको पता चल जाता है, आगे उसके ऊपर जाके वो फंक्शन अप्लाई कर लेता है, उसको सीख के फिर वो खुद से एक चीज क्रिएट कर लेता है, क्योंकि उसको पता होता है कि जेब्रा किस तरह दिखती है, उसके पास डेटा होता है। तो उस तरह वो खुद क्रिएट कर लेता है। अब उसमें जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट बन जाए। आप लोगों ने देखा होगा मुख्तलिफ मॉडल होते हैं, लेकिन हर कोई अलग अलग पिक्चर क्रिएट कर लेता है। क्यों? जवाब ये है कि हर किसी को अलग अलग डेटा मिला होता है। जितना ज्यादा डेटा होगा, जितना अच्छा डेटा होगा, उतना अच्छा मॉडल आप लोग का बनेगा। सही। अब आगे अगर हम बात कर लें रूल्स की, इसकी कि ये हम लर्निंग, इसमें जो रूल्स होते हैं ना, इसके हम किस तरह हम इसको लर्न कर लेते हैं। आपको मैंने एक एग्जांपल दे दिया है। किस चीज़ का एग्जांपल मैंने दे दिया? मैंने एग्जांपल आपको दे दिया है बच्चे का, कि बच्चे को हम बताते नहीं, हम उनको सिखाते हैं। हम वो बातें हमारी नहीं समझता कि पैर उठाओ क्या होता है, हम उसको प्रैक्टिकली प्रूव करके देते हैं। सही। अब आप लोग सारे यहाँ पे जो भी बैठे हुए ना, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई बंदा होगा जिसको चाइनीज आती होगी। नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि मिसाल के तौर पर आप लोग चाइनीज में एक सेंटेंस मुझे बना के दे दें, तो आप लोग नहीं बना सकते। और वजह क्या है? वजह ये कि आप लोग को पता नहीं कि चाइनीज का ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। आप लोग को कुछ नहीं पता। अब आप लोग के जहन में कभी ये सवाल, आप लोग में किसी के जहन में ये सवाल आया है कि जब इनको ये एआई को पता नहीं होता कोई चीज, फिर ये खुद से जनरेट किस तरह कर लेता है? उसको पता किस तरह चल जाता है कि ए के बाद क्या आना है, डी के बाद क्या आना है, लाइक टेंसेस का उसको किस तरह पता चलता है? कोई अगर किसी को पता हो तो मुझे यहाँ पे बता दे आंसर में कि उसको पता किस तरह चल जाता है एआई का, ये चैट जीपीटी को। या कमेंट में मुझे बता दे, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ। अच्छा, कोरियन आती है बिलाल भाई को, वाह भाई। कोरियन आजकल हमारी फीमेल को भी बहुत आती है, ड्रामास देख के ड्रामास। अच्छा। हम्म, अच्छा मुझे बता दें, इसका आंसर मुझे दे दें कि आप लोग के ख्याल में ऐसी क्या चीज़ होती है चैट जीपीटी से पढ़ के नहीं, खुद से, खुद के जहन। मैंने आपको एक बात बताई स्टार्ट में कि अपना जहन यूज करना है। चैट जीपीटी हमारे पास पड़ा हुआ है, उसको हम देखेंगे। अभी यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी देखनी है हमने। आज का सेशन थोड़ा थ्योरेटिकल है, कल प्रैक्टिकल की तरफ हम जाएंगे, लेकिन आपका सिर्फ मैं एक माइंड बना रहा हूँ कि काम किस तरह हो रहा है। तो मुझे बताया कि ये चैट जीपीटी काम किस तरह करता है। लाइक कि ए के बाद ये आना है, या आई एम गोइंग टू पिशावर, तो गोइंग के बाद टू आना है, टू के बाद पिशावर आना है। ये किस तरह उसको पता चल जाता है? कमेंट में मुझे बता दें। अच्छा, हम एआई टूल्स को डेटा फीड करते हैं, लाइक हम उससे जनरल रूल्स बताते हैं। लाइवा नवीद, आपकी बात भी थोड़ी बहुत सही है, लेकिन एग्जैक्ट जो मैं आंसर, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन जो मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मुझे बता दें कि सही है। आप फीड डेटा फीड करते हैं, लेकिन अच्छा मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मैं बता देता हूँ यार, देखो जैसे स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास। चलिए। अच्छा, आपको आपको मैं यहाँ पे अगर बैठ जाऊँ या फिर आप लोग को मैं एक सिस्टम दे दूँ,
اور اچھا فوکس آن کی ورڈز، یہ ایمان عیشا نے بتا دیا ہے۔ اچھا ایمان، آپ کی بات جو ہے نا یہ اٹینشن میکینزم کی طرف جا رہی ہے، اٹینشن از آل یو نیڈ، تو اس میں یہ فوکس ہوتا ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ میں جو کوشچن کر رہا ہوں کہ اس کو پتہ کس طرح چل جاتا ہے کہ یہ ٹینسز اس طرح ہیں، وہاں پہ ٹینسز کا تو پتہ اس طرح نہیں چلتا، وہ تو سمجھنے کے لیے وہ فوکس کرتا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ چیٹ جی پی ٹی آپ کے کوشچنز لکھ لیتے ہیں، اس کو پتہ کس طرح چلتا ہے کہ اس ورڈ کے بعد یہ آنا ہے، اس کے بعد یہ آنا ہے، لائک ہی از گوئنگ ٹو پشاور بیکاز ہی از ہیز ٹو اٹینڈ ہز ٹیسٹ، تو یہ سارا ٹینس اور یہ سارا ورب کا کون سا فارم لگنا ہے، کون سا فرسٹ فارم لگنا ہے، سیکنڈ تھرڈ، ایکٹیو وائز پیسے وائز، سارا اس کو پتہ کس طرح چل جاتا ہے، اس کو ہم ٹینسز رول سے کاتے یا کس طرح۔ اچھا پریڈکشن کرتے ہیں ہیومن بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کر کے مشین لرننگ سے، ایگزیکٹلی کہ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے پروگرامنگ ہوئی ہوتی ہے، میں ہمارا نہیں بیک اینڈ پہ ڈیٹا پڑا ہوتا ہے، تھنک سو جی سر سر تو مشین لرننگ، اچھا اس کے پروگرامنگ پڑھی، اچھا میں آپ لوگ کی بات بس میں آپ کو آنسر دیتا ہوں، چلے آپ لوگ کے آنسر کچھ آنسر میں دیکھ لیے ماشاء اللہ سے سب قریب قریب پہنچے، لیکن ایگزیکٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ان کے پاس جو ڈیٹا پڑا ہوتا ہے نا، اس ڈیٹا سے وہ سیکھ جاتا ہے کس طرح کہ ہمارے ان کو ہم جو ڈیٹا دیتے ہیں اس میں تو سینٹینسز ہوتے ہیں نا، تو وہ ہمیشہ دیکھتا ہے کہ ہر سینٹینس میں ہی کے بعد از آتا ہے، ہی کے بعد ہیز آتا ہے، تو وہ سیکھ جاتا ہے یہاں سے کہ جہاں پہ بھی ہی آئے گا از آئے گا، از کب آئے گا جب پریزنٹ ہوگا، کہ ہی از اگر گوئنگ ہوگا آئی این جی لگے گا، پریزنٹ ہوگا پھر اس کے ساتھ از آئے گا، وہ سارے سیکھ جاتا ہے۔ اگر میں اس کو ریئل لائف میں آپ کو اگزامپل دے دوں تو اگزامپل اس کی یہ ہے کہ آپ کو میں ایک چائنیز بک دے دوں اور آپ کو میں بتا دوں یا اب یہ آپ کے ذہن میں کمپیوٹر فکس کر لوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ورڈ کون سا ہے، تو آپ لوگ اس بک کو ریڈ کر کے تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کچھ عرصے بعد، ایک مہینے بعد اس بک کو ریڈ کر کے کہ جب بھی یہ ورڈ آئے گا تو اس کے بعد یہ ورڈ آتا ہے، پھر اس کے بعد یہ آتا ہے، کیونکہ پورے بک میں اس طرح رولز یوز ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں یہ رول کا کس رول کا نام کیا ہے، یہ رول ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن آپ کو صرف اس کے جو ریپیٹیشن ہے اس سے پتہ چل جائے گا۔ اس لیے اگر میں اگزامپل دے دوں، قرآن مجید ہم سب نے پڑھا ہوا ہے نا، تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کا ورڈ جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں ڈائریکٹ اس کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے، یا اس کا ہم ورڈنگ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ پلورل یوز ہوتا ہے، یا یہاں پہ یہ ورڈ اس طرح آیا ہوا ہے یا اس طرح آیا ہوا ہے، ہمیں مطلب کبھی کبھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں وہ پورا قرآن مجید جب ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں نا، بار بار جب پڑھتے کوئی انسان اگر بار بار قرآن مجید پڑھتے تو اس کو آٹومیٹکلی ذہن میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس ورڈ کے بعد یہ ورڈ آ سکتا ہے، یہ نیچر ہے۔ یا اگر میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دے دوں، آپ لوگ کبھی دیکھا ہے کہ ہیبیچویشن یا بایولوجی میں ہیبیچویشن آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، یا اس طرح وہ بندر والی کہانی سب کو پتہ ہوگی کہ ایک بندر کو جب بھی وہ بیل کرتا تھا اس کو فوڈ مل جاتا تھا، تو ایک دفعہ اس نے مطلب اس کو پتہ نہیں تبھی، لیکن اس نے بیل کر دیا تو اس کو فوڈ مل گیا، دوسری دفعہ بھی اس کو پتہ نہیں تھا اس نے کر دیا، پھر وہ سیکھ گیا اس سے کہ جب بھی میں یہ کرتا ہوں تو مجھے فوڈ ملے گا، تو یہ اس طرح لرن کرتا ہے اس کو رولس پتہ نہیں ہوتے، لیکن پورے ڈیٹا کو ریڈ کرتے تھے کہ ہر ڈیٹا میں ہر لفظ کے بعد یہ ہوا ہے، تو وہ وہاں سے سیکھ لیتا ہے۔ اچھا تو یہ چیٹ جی پی ٹی یا یہ جنریٹک اے بی اس بیس پہ کام کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، دے ووڈنٹ بی taught the rule adjectives go before nouns، but کیا they would simply observe that 99.9% of the time the word the is followed by something that isn't a verb. They would infer patterns. ing often ends a certain class of words. Question marks appear at the end of the certain sentence structure. تو وہ اس سے سیکھ جاتا ہے کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات کس نے مجھے نہیں بتائی، اسٹیٹسٹک یوز ہوتا ہے یہاں پہ، پروبیلٹی یوز ہوتی ہے یہاں پہ کہ کتنے پرسنٹ چانسز ہے اس ورڈ کے بعد اس ورڈ کے آنے کا، لائک آئی ایم گوئنگ ٹو، تو ٹو کے بعد
कौन सा वर्ड आएगा अब यहाँ पे, हम एग्जाम देते हैं ना, तो इसके बाद कौन सा वर्ड आएगा, तो जितने भी वर्ड्स की पॉसिबिलिटी है, तो सारे वर्ड्स की वो प्रोबेबिलिटी चेक कर लेता है, किसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है। वो किस तरह चेक करता है, मैं आपको एक बताता हूँ सबर। मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ बल्कि। अब मिसाल के तौर पर ये हमारा, मिसाल के तौर पर ये हमारा स्पेस है, इसमें सारे वर्ड्स पड़े हुए हमारा डेटा, हमारे चैट जीपीटी का, हम एक चैट जीपीटी बना रहे हैं या एक चैट बोर्ड बना रहे हैं, उसका सारा डेटा हमने इसमें रखा हुआ है, ये हमारा डेटा सेट है पूरा। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो वर्ड्स एक दूसरे के मतलब एक जैसे होते, सिमिलर वर्ड्स होते, वो करीब होंगे। लाइक यहाँ पे अगर किंग होगा, ये किंग है, तो क्वीन इसके करीब होगी। तो जितना वर्ड करीब होगा, उसका मतलब ये इतना सिमिलर है। यहाँ पे अगर हॉर्स है, तो यहाँ पे डंकी आ सकती है। यहाँ पे अगर लाइन है, तो यहाँ पे टाइगर ये वगैरह आ सकती है, नजीक नजीक। लेकिन अगर यहाँ पे कैट है, तो यहाँ पे स्नेक आएगा, दूर दूर। तो आपको एक बात पता होगी कि हमारे कंप्यूटर को अल्फाबेट समझ नहीं आते, उसको मैथ्स समझ आती है। तो हम ये पूरे डेटा को, पूरा इंग्लिश जो है, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं न्यूमेरिकल डेटा में, इस तरह डेटा में, और न्यूमेरिकल डेटा को हम इस तरह सेव कर लेते हैं। ये आगे आएगा, लेकिन आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। और फिर उसको हम करीब करीब, ये ऑटोमेटिक होता है, और फिर उसमें जो वर्ड्स करीब होते हैं, तो वो सिमिलर टाइप होते हैं, उसके दरमियान डिफरेंस कम होता है, और उसकी प्रोबेबिलिटी इस तरह ज्यादा होगी। प्रोबेबिलिटी कि इसके बाद, इस वर्ड के बाद ये वर्ड आएगा, इसके बाद ये आ सकता है, इसके बाद ये आ सकता है। आप लोग से मैं एक दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, आप लोग को तो ये समझ आया होगा कि करीब करीबी होता है या दूर दूर किस तरह होता है। एक और क्वेश्चन है आप लोगों से, क्वेश्चन ये है कि ये डिस्टेंस किस तरह फाइंड करते हैं, लाइक कि इस वर्ड के बाद, या ये प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड करते हैं कि इस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आएगा, इस वर्ड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं या टेक्निक वगैरह यूज करते हैं। अगर किसी को पता हो, सिर्फ वो बताए, अगर ना पता हो तो खैर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बल्कि मैंने आप लोगों को बता भी दिया डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करते हैं, यूक्लिडियन फार्मूला आप लोगों ने नाम सुना होगा, या और भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे। चलो बस मैंने बता दिया आप लोगों को। तो बस सिर्फ उसको फाइंड करते थे, तो किस तरह कि यहाँ से यहाँ के दरमियान डिस्टेंस कितना है, इस वर्ड के बाद इस वर्ड, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स होंगे, सही, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स होंगे, और मिसाल के तौर पर ये वाले वर्ड जो है ना, ये ये वर्ड्स जो है, ये वाला, ये ग्रीन, ये मिसाल के तौर पर किंग है। तो किंग के बाद कौन सा वर्ड आ सकता है, तो इसके इर्द गिर्द बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो किंग से सिमिलर होंगे। तो हम क्या करेंगे, उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके बेस पर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं किसके करीब कौन सा है, किसके थ्रू, डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, फिर यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का, यहाँ के यहाँ, यहाँ से यहाँ का, जो सबसे ज्यादा करीब होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली वो वर्ड आएगा किंग के बाद। सही, होप्स आप लोग को समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आए तो फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, फिर हर चीज, हर बंदों को हर चीज नहीं आनी चाहिए, फिर गुरूर में आ जाते हैं इंसान। चले, मजाक कर रहा हूँ, आप लोग को इंशाल्लाह समझ आएगा। लेकिन फिलहाल खैर मैं आप लोग को सिर्फ ये जो बता रहा हूँ ना, आपके सर के ऊपर से अगर गुजरेगा, तो इट्स ओके, आगे आप लोग को समझ आएगी। तो सिर्फ आप लोग को सिर्फ इतना समझ आना चाहिए, और आई होप सो कि आप लोग को आया होगा इतना समझ कि रूल्स किस तरह ये फॉलो होते हैं, क्योंकि हम उसको रूल्स नहीं देते, वो खुद सीखते हैं उससे। अच्छा, आगे अगर हम जाएं, आप लोगों में से बायो के स्टूडेंट्स कितने हैं, मुझे वो बता दें, बायो के स्टूडेंट्स। वो मुझे हैंड राइज करके, अच्छा, वो बहुत सारे बायो के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, बायो के स्टूडेंट्स, मैं भी खुद बायो का स्टूडेंट था। मैं बायो पढ़ चुका हूँ, मैं 2-3 साल में एमडीकेट रिपीट कर चुका हूँ मेडिकल का, और मुझे इतना शौक है मेडिकल का कि मैं अभी भी एआई
यूज़ कर रहा हूँ बायोमेडिकल डिवाइसेस में, और मैं हेल्थ केयर में, कंप्यूटेशन न्यूरो साइंस में। तो मेरी सारी वो चीज़ जो होती है ना, वो एआई, बायोलॉजी और ये है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ जो बायो वाले स्टूडेंट से, न्यूरॉन क्या होता है? ये आप लोग का क्विज चल रहा है अभी। व्हाट इज न्यूरॉन? मुझे बता दें। सीएस में डेटा साइंस कर चुका हूँ, लेकिन बायो के स्टूडेंट्स को पता होगा कि यहाँ पे चैट में बता दें मुझे कि न्यूरॉन्स क्या है। अच्छा, बायो के जो स्टूडेंट्स नहीं है वो, उनका भी है, लेकिन जो बायो के स्टूडेंट्स है सिर्फ अभी। अच्छा, न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल फ्रॉम ब्रेन टू ऑल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कोमल, आपका जवाब सही है। जैनब, आपने भी ट्रांसफर सिग्नल सही, मतलब सबने अपने अल्फाज में एक चीज बता दी जो सही चीज है, न्यूरॉन्स। अच्छा कोमल, चैट जीपीटी जिंदाबाद। अच्छा देखिए, न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, वो मैंने आपको बता दिए। मैंने नहीं, बल्कि लोगों ने बता दिया आपको, स्टूडेंट्स ने बता दिया, काबिल लोग आए हुए हमारे पास। वो आपका इनपुट लेता है, उसको आगे प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है। अब बायो के बेस पे अगर हम बोल दें, तो आपको अगर मैं थप्पड़ दे दूं किसी को, तो अब थप्पड़ जहाँ पे लगेगी तो वहां पे आपके नर्व्स होंगे, न्यूरॉन्स होंगे। अब वो न्यूरॉन्स वहां से वो लेंगे, न्यूरॉन्स आपका जो मैंने इनपुट दे दिया, इनपुट क्या है? इनपुट थप्पड़ है। अब थप्पड़ इनपुट है, अब वो वहां से जो नर्व्स होते हैं या आपके न्यूरॉन्स होते हैं, वो आपकी बॉडी से वो ले लेते हैं मैसेज, वो उसको आगे प्रोसेस करते सेल बॉडी में, और फिर आगे उसको लेके जाते आउटपुट की तरफ। एक्सॉन बॉडी होती है एक, मैं आप लोगों के अभी भी दिखा, बल्कि मैं आपको एक दिखा देता हूँ, आप लोगों को अभी समझ आ जाएगी इस चीज़ की। मैं सर्च कर लेता हूँ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स की अगर आप लोगों को समझ आ जाएगी ना, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोगों को इसकी समझ आ गई तो आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए आगे न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ने के लिए। न्यूरल नेटवर्क्स यही चीज़ है। अच्छा जी, ये देखिए, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है ना, तो ये एक्सॉन होता है, ये सेल बॉडी होती है, ये डेंड्राइट्स होते हैं। क्या होता है कि यहाँ से मैसेज आता है एक्सॉन से, ये जो आपको नजर आ रहा है कि ये रूट्स जिस तरह यहाँ से वो आते हैं, आगे मैसेज लेके जाते हैं, ये माइलिन शीट होती है, ये यहाँ पे मैसेज नहीं जाती है, यहाँ से जंप करके जाते हैं। सही। यहाँ पे सेल बॉडी होती है न्यूक्लियस की, ये सेल बॉडी पूरी, सेल बॉडी में न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे ये वो होता है, प्रोसेसिंग होती है उसकी, और डेंड्राइटिस के थ्रू वो मैसेज आउटपुट दे देता है। तो क्या होता है कि आप जब आपको थप्पड़ में देता हूँ, तो वो मैसेज जाते हैं आपके ब्रेन में या आपके सेल बॉडी में, वहां से वो प्रोसेस करते थे, और फिर आपको पता चल जाता है कि मुझे दर्द हो रहा है। ये दर्द का पता लगना आपके न्यूरॉन्स के ऊपर है। आप लोगों ने नशे में इंसान को जब करते हैं ना, तो वो उसको पता नहीं चलता, क्यों? क्योंकि उसके न्यूरॉन्स सोए हुए होते हैं। तो न्यूरॉन्स में क्या होता है? न्यूरॉन्स में मैसेज आता है, वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, फिर आपको वो आउटपुट देता है। इनपुट होते हैं, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट होता है। सही। आप लोग को स्क्रीन नजर आ रहा है? अच्छा। तो सेम एक बायोलॉजिकल एक साइंटिस्ट है, तो उसने सोचा कि सेम अगर हम अप्लाई कर ले इंसानों के ऊपर, तो सेम एआई के ऊपर, तो वो क्या कर लेता है कि एक उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिया है, उसमें लेयर्स बना दिए, एक इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, और लेयर्स बना दिए, फिर आखिर में आउटपुट। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, न्यूरॉन्स बायो का, ये सेम न्यूरल नेटवर्क इस तरह बनता है। अब न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, मैं आपको एक ड्रा करके यहाँ पे दे देता हूँ। चलिए फिर कोई बात नहीं, क्या याद रखें। मिसाल के तौर पर ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा। सही। यहाँ पे ये मिसाल के तौर पर ये अलग न्यू वो है, ये अलग है, और ये आपका आउटपुट है। तो क्या होता है कि ये यहाँ से यहाँ कनेक्शन, ये इस तरह कनेक्ट होते हैं, ये इस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, सारा सारा कुछ इस तरह ये कनेक्ट होते हैं। मैं अगर एक मैं इसको साफ बना के देता हूँ।
آپ لوگ کے لیے سمجھ آ جائے گی آپ لوگوں کو. یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. صحیح سے یہاں سے یہاں پہ آ گیا، یہاں سے یہاں، یہ یہاں سے یہاں. یہ میسیجز ہیں. آخر میں آپ کو آؤٹ پٹ مل جاتا ہے. اب آپ کا مثال کے طور پر اے آئی کا میں بات کروں. یہاں پہ آپ کا ڈیٹا ہے، یہ پورا آپ نے نیورل نیٹورک بنا دیا ہے مثال کے طور پر ڈیزیز پریڈکشن کا. تو یہاں پہ ایج، یہاں پہ آپ لوگ کا جینڈر آ جائے گا، یہاں پہ ای سی جی. اب یہاں پہ آگے اگر ہم جائیں تو یہاں پہ ایج میں یہاں پہ بلو 25، یہاں پہ 25 آ جائے گا، یہاں پہ اس طرح. یا یہاں پہ آ جائے گا جینڈر میں میل یا فیمیل، یا فیمیل میں ایج چھوٹی یا بڑی. یا آگے اگر ہم بات کر لیں تو ای سی جی نارمل ہے، نارمل نہیں ہے، مطلب اس طرح یہ ہڈن لیئرز ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا ان پٹ لیئر ہو گیا، یہ آپ کا ہڈن لیئرز ہوتے ہیں. اور یہ آخری جو آپ کا ہوتا ہے یہ آؤٹ پٹ لیئر ہوتا ہے. تو ان پٹ لیئر سے آپ کا میسج جاتا ہے ڈیٹا، یہاں پہ آپ کی پروسیسنگ ساری ہو جاتی ہے. یہ بھی کیلکولیشن یہاں پہ ہوتی ہے، فنکشنز اپلائی کرتے ہیں، وہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گا. صرف آپ لوگ یہاں پہ سوچیں صرف یہ. اور یہاں سے آپ کو پھر آؤٹ پٹ دے دیتا ہے. کام کس طرح کرتے ہیں وہ پھر انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے. فی الحال کے لیے بس صرف آپ لوگ صرف اتنا نیورون کو سمجھیں، صرف اتنا کہ یہاں پہ ہم ان پٹ دیتے ہیں، آگے پروسیسنگ ہوتی ہے، پھر ہمیں آؤٹ پٹ ملتا ہے. تو آرٹیفیشیل نیٹورک میں یہی کام کرتا ہے. اور اس پہ کام کس طرح ہوتا ہے؟ ویٹس کے تھرو. ویٹس کہاں پہ؟ یہ جو نوڈز میں نے آپ کو بنائے تھے نا، وہ اس طرح جو نوڈز میں نے بنائے تھے یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں پہ اس طرح جو نوٹس میں نے بنائے تھے یہ ہو گیا، یا اس طرح جو نوٹس بنائے تھے نا یہ اس طرح. تو یہاں پہ ویٹ ملتا ہے اس کو. یہاں پہ مثال کے طور پر 75 ہو گیا، یہاں پہ 25 ہوگا، یا اس طرح اس طرح. تو یہ ان کو ویٹس ملتے ہیں. ویٹس کس طرح ملتے ہیں؟ امپورٹنس کے حساب سے، کہ کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں آؤٹ پٹ میں، اس بیس پہ. خیر وہ ہم آپ بعد میں کرتے ہیں. تو یہ کیا سی لرننگ اس طرح کرتے ہیں. صحیح. تو بیسکلی آئیڈیا یہ ہے کہ نیورون جو ہوتے ہیں نا آپ کے جو ڈیپ لرننگ، وہ سارے نیورون کے اوپر کام کرتے ہیں، نیورل نیٹورکس کے اوپر. نیورل نیٹورک بنے ہوئے ہیں نیورون سے. آگے جاتے ہیں. ناٹ آل جنریٹو اے یا سیم لینگویج، کیونکہ اس میں ایل ایل ایم، ڈیفیوژن ماڈلز اور گیس، یہ تین قسم کے ہوتے ہیں. ہم اس پہ بات کریں گے آگے کل سے انشاءاللہ. اس کو میں آپ کو صرف آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ ہم نے پھر اس کو پھر اینڈ بھی کرنا ہے اس سیشن کو، ٹائم زیادہ ہو گیا نا. تو میں بھی آپ کو آسان الفاظ میں صرف یہ بتا دیتا ہوں تاکہ پھر آپ کو آگے آسانی ہوگی. ایل ایل ایم کیا چیز ہے؟ لینگویج ماڈل سے لارج لینگویج ماڈل. لارج لینگویج ماڈل کے حساب سے اگر میں بات کروں، چیٹ جی پی ٹی ہو گیا، آپ کا جیمینائی ہو گیا، سارا جس میں ٹیکسٹ کی بات ہوگی وہ ایل ایل ایم سائٹ ہوگی. صحیح ہے. اس میں آپ کا ورڈ پریڈکشن بھی آ جاتا ہے، اس میں آپ کا سارا کچھ آ جاتا ہے. صحیح. دوسری بات دوسری بات یہ کہ ڈیفیوژن ماڈلز ہوتے ہیں. ڈیفیوژن ماڈلز میں کون سے آتے ہیں؟ ڈیفیوژن ماڈل میں آپ کے آتے ہیں ویڈیوز اور امیج جنریشن کی، ان کی بات ہوتی ہے. گیس کیا چیز ہے؟ گیس جو ہوتی ہے نا یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے. اچھی چیز کس طرح ہوتی ہے؟ اچھی چیز اس طرح ہوتی ہے کہ چور پولیس کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. صحیح. تو میں شارٹ کر کے صرف بتاتا ہوں. مثال کے طور پر میں پولیس ہوں اور آپ لوگ چور ہیں. صحیح. لوگ واقعی چور ہیں. تو چلے کیا ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں میں سے مجھے چور معلوم کرنا ہے کہ ایگزیکٹ چور کون سا ہے. تو میں کیا کروں گا، آپ لوگوں مثال کے طور پر آپ لوگوں میں سے ایک چور ہے اور آپ لوگ میں باقی نہیں. تو میں ایک کو بتاؤں، ایک آپ لوگ مجھے بتاؤ گے کہ یہ چور ہے یا نہیں. تو میں کیا کروں گا، میں اس کو ڈیٹیکٹ کروں گا کہ ہاں یہ چور ہے. مجھے پتہ چل جائے گا. جب مجھے پتہ چل جائے گا تو آپ لوگ آپس میں جا کے مشورہ کر لیں گے اور دوبارہ سے مجھے بتائیں گے کہ اب بتائیں. پھر میں دوبارہ بتاؤں گا. پھر اس طرح کرتے کرتے ایک چور پولیس کرتے کرتے آخر میں ایک سینیریو یا ایک سچویشن ایسی آ جائے گی کہ جس میں مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں چور کون سا ہے. اب سیم گینز کام کرتا ہے. کیا کرتے ہیں کہ دو نیورل نیٹورکس ہوتے ہیں، جس طرح نیورل نیٹورکس میں نے آپ کو بتا دیے. تو کیا ہوتا ہے کہ ایک نیورل نیٹورک امیج کریٹ کر لیتا ہے اور دوسرا نیورل نیٹورک اس کو کرتا ہے کہ کیا آیا یہ ریئل امیج ہے یا فیک امیج ہے. صحیح. تو وہ اگر وہ پریڈکٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ ریئل ہے، نہیں وہ پریڈکٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ فیک ہے.
या रियल है। अगर वो सही प्रिडिक्ट कर लेता है तो वो इमेज दोबारा जाती है न्यूरल नेटवर्क के बाद, तो वो दोबारा पिक्चर बना देता है। लाइक अगर मैं एक मॉडल को बता दूं, एक मॉडल एक न्यूरल नेटवर्क से उसके थ्रू मैंने पिक्चर बना दी है लाइन की, तो वो लाइन की इमेज जाएगी दूसरे के पास। अब दूसरा न्यूरल नेटवर्क उसको प्रिडिक्ट करे कि आया ये लाइन है या नहीं है, दूसरा है, वहां से सही आ गई या गलत आ गई, वो अपना आंसर सही कर लेता है, तो दोबारा लाइन की तस्वीर जाएगी पहले वाले के पास, वो दोबारा बनाएगा तस्वीर, फिर आएगी। इस तरह करते करते एक वक्त ऐसा आएगा कि वो न्यूरल नेटवर्क फिर बता नहीं पाएगा कि ये तस्वीर रियल है या फेक है। जब बता नहीं पाएगा तो फिर हमें वो तस्वीर मिल जाती है। तो आप लोग जब देखते हैं ना कि हमें एक तस्वीर मिल गई, तो वो इस फेज से आती होती है कि आपका न्यूरल नेटवर्क बता नहीं पाता कि ये रियल है या फेक है। अब वो जितना हम ज्यादा उससे बनाएंगे, डेटा से ट्रेन करेंगे, तो फिर ज्यादा हमें अच्छा बनेगा गेम्स नेटवर्क। ये हम इस पे बात करेंगे आगे इंशाल्लाह। सिर्फ आप लोग को एक ओवरव्यू सा देना था। अच्छा, द कोर ट्रिक क्या है? प्रेडिक्ट नेक्स्ट पीस। अच्छा, मैंने आपको ये स्टोरी बनाई थी, पहले बता दी थी कि इसमें नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करना होता है कि ही, तो वो देख लेते हैं पूरे डेटा को कि ही के बाद पूरे डेटा के बाद में कौन सा वर्ड आया है, इज, तो फिर वो आगे फिर जाके इसके बाद फिर पूरे डेटा में क्या वर्ड ज्यादा आ सकता है, तो वो फिर सारे वर्ड्स को कलेक्ट कर लेता है, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी देखता है कि इसमें कौन से वर्ड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो आ सकता है। तो इस तरह करके करते हमें वो नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट कर लेता है। इसको हम फिर डिटेल में आगे करेंगे। अच्छा, तो अच्छा, ये लेटेंट स्पेस जो था, मैंने आपको बता दिया था। लेटेंट स्पेस क्या है? वही चीज़ है। मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बना के दी थी, मैं आपको यहाँ पे बना के देता हूँ वो डेटा, कि यहाँ पे लाइन और किंग और वो क्वीन और किंग और सारा का डेटा, वो लेटेंट स्पेस है। उसको लेटेंट स्पेस बोलते हैं। वेक्टर डेटाबेस भी बोलते हैं, और वो लेटेंट स्पेस भी। सही। तो ये अगर मैं बात बता दूं तो इसको हम डिटेल से इंशाल्लाह कल भी करेंगे। ये चीजें जो मैं आगे लेके जा रहा हूँ ना, इसलिए क्योंकि इसके साथ हमने इसका पीछा नहीं छोड़ना। ये हम इसको बार बार करेंगे, तो ये आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ एक स्टेट्स बताता हूँ, फिर इस सेशन को एंड कर लेते हैं। आजकल की दुनिया में अगर हम बात कर ले, तो क्या कहते हैं कि टू अप्रिशिएट द मॉडल्स वी मस्ट अप्रिशिएट द स्केल। हम सिर्फ आपको जहन खोलने के लिए कि ये हमारा चैट जीपीटी या जो सोरा है या जेमिनाई, वो कितने डेटा पे बना हुआ है, तो आप लोग सिर्फ अपने जहन में इस डेटा को रख दें, आपके जहन खुल जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन रेशनल एआई एंड मॉडर्न जनरेटिव एआई ऑफन कम्स डाउन इन ऑर्डर टू मैग्नीट्यूड इन डेटा एंड कम्प्लेक्सिटी। अच्छा, तो 175 बिलियन पैरामीटर्स है। सही। पैरामीटर्स क्या होता है कि ही इज गोइंग टू, या इस तरह पैरामीटर्स 175 बिलियन पैरामीटर्स पड़े हुए हैं उस डेटा में, इसके बैक साइड पे। टोकन्स 1.2 टोकन्स पड़े हुए हैं। अब टोकन्स क्या है कि आपको ये सेंटेंस नजर आ रही है, ये द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एआई एंड मॉडर्न जनरेटिव एआई। इसको अगर हम मैं इसके ऊपर अगर मैं अप्लाई कर लूँ टोकन, तो क्या बन जाएगा कि बी, तो टी अलग हो जाएगा, एच अलग हो जाएगा, ई अलग हो जाएगा। ये टोकन्स बन जाएंगे। टी अलग, एच अलग, ई अलग, डी अलग, आई अलग, अलग, एफ अलग। या ये भी हो सकता है कि आप पूरा दी डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल पूरा पूरा वर्ड एक एक टोकन बना दें। तो 1.2 ट्रिलियन टोकन्स इसके पास पड़े हुए। अब अगर मैं इस सेंटेंस की बात कर लूँ यहाँ पे, अगर इसको मैं टोकन या पहले वाले सेंटेंस जो मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं बात कर लूँ इसकी, इस वाले सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इसमें 9 टोकन्स है। अगर मैं एक एक वर्ड्स को ले लूँ, तो आप लोग खुद सोचे। अच्छा, इसमें 9 नहीं, इसमें 8 है, क्योंकि इसमें जी 2 दफा आया हुआ है। तो आप लोग सोचे 1.2 ट्रिलियन वर्ड्स या इतना डेटा के ऊपर वो ट्रेन हुआ होता है। अच्छा, इमेजेस 2.5 250 मिलियन इमेजेस के ऊपर वो ट्रेन हुआ होता है। और इस तरह ये जीपीयूज कितना यूज होता है। तो खैर, ये मैं आपको सिर्फ डेटा के लिए बता रहा था। अच्छा, रैप अप सारा हमने बस बता दिया है। और जल्दी जल्दी से आप लोग के क्वेश्चंस कि आज क्या क्या हमने पढ़ा है।